Hello everyone, my name is Yogesh Mishra and I welcome you all in this next session of vocabulary. So today we are going to talk about the most important or most frequent 5 or 6 words which appear in examination. So let us start. The first word is indigent. So as it is very evident from this picture that हम कुछ ना कुछ गरीबी से related बात करने वाले हैं. So indigent means suffering from extreme poverty, from extreme poverty. बहुत ज़्यादा गरीबी से सफ़र करना is called indigent, and we can say that the situation of impoverishment, impoverished or impoverishment, and deficient and destitute, famished and pauperized. पॉपर गरीब को बोलते हैं, जो दरिद्र होता है उसको बोलते हैं. पॉपराइज्ड इज इंडिजेंट सिचुएशन. सो पॉपराइज्ड, famished, destitute, deficient and impoverished, they all means the same, like indigent. And indigent means suffering from extreme poverty. So these are the words, basically the destitute and famished or pauper, they appear in examination most of the time. So please remember these words. Let us move on to the next word. The next word is indomitable. Many a time you must have heard this word, indomitable, and it is a highly frequent word which appears in examination. You must have heard about Michael Phelps. He was the first person in the year 2008. He won 8 medals in one Olympic season. So talking about indomitable, so indomitable means which cannot be defeated, can't be defeated, जिसको हराया ना जा सके. जैसे कि यहाँ पे अजय लिखा है, अजय होगा. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सिनोनिम्स कैन बी, इट्स सिनोनिम कैन बी impregnable, okay. It can be unconquerable, जिसको कंकर ना किया जा सके, unconquerable. It can be invincible, ठीक है, जिसको हराया ना जा सके. एंड लास्ट, insurmountable, ठीक है, जिसको कवर अप ना किया जा सके या जिसको अपने वश में ना किया जा सके. सो insurmountable, invincible, unconquerable and impregnable all are synonymous to this word indomitable, which means cannot be defeated, और हिंदी में कहते हैं अजेय, जिसको हराया ना जा सके. So let's move on to the next word. Do not laugh, it happens in South Indian movies. So this picture is slightly ineffable for me. So ये idea है, basically आप लोग भी कर सकते हैं. So ineffable means जिसको बताया ना जा सके, ठीक है, जिसको explain ना किया जा सके. ठीक है. So मैं ये कह सकता हूं कि ineffable means incapable of being expressed, and we can say unspeakable, we can say inenarrable, or I can say inexpressible, and we can say
टैबू. सो टैबू इज द वर्ड जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, जिसके बारे में बात की नहीं जा सकती. तो टैबू कैन ऑल्सो बी सिनोनिमस टू दिस वर्ड. वैसे लिटरल मीनिंग नहीं होता, बट सिनोनिम्स में अगर आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं. सो इनएक्सप्रेसिबल, इनएनरेबल, अनस्पीकेबल और एनीथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड इनएफेबल. जिसको हम लोग समझा नहीं सकते, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उसको हिंदी में लिखा जाएगा अकथनीय. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. सो नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्रिंजमेंट. सो यहाँ पे डॉग्स का आना मना था, बट ये यहाँ पे आ गया. वैसे तभी शक्तिमान आ गए और शक्तिमान ने इसने बोला सॉरी शक्तिमान. ठीक है, तो बचपन में आपने भी शक्तिमान देखा होगा. इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये होता है कि एक्ट ऑफ वायलेशन, एक्ट ऑफ वायलेशन एंड ट्रेसपासिंग. और ट्रेसपासिंग किस चीज की करते हैं आप लोग? ट्रेसपासिंग ऑन अ राइट और प्रिविलेज. जो किसी और का राइट है या किसी और का प्रिविलेज है, आप उस पर क्या कर रहे हैं? ट्रेसपासिंग कर रहे हैं. देन दैट थिंग इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट. सो सिनोनिम्स में मैं क्या बोल सकता हूं? आई कैन से दैट contravention, infraction, transgression, all are the synonyms to this word infringement, जिसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं किसी चीज का. ठीक. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. ये वर्ड ऑलरेडी हम लोग इंडोमिटेबल के साथ कर चुके हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंडोमिटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी और हु कैन नॉट बी डिफीटेड. सो इनविंसिबल का मतलब भी यही होता है, अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड. Invincible and indomitable both are synonymous to each other. Let us move on to the next word. So next word is labyrinth. लेबिरिंथ का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर लिटरल मीनिंग पे जाए हम लोग, तो लिटरल मीनिंग होता है लेबिरिंथ का ए मेज. देखो ना आप, पजल, वो जो भूल भुलैया टाइप, बेसिकली ये जो होती है इसे हम लोग लेबिरिंथ कहते हैं. बट अगर इसके और मीनिंग पे जाएं या फिलोसफिकल मीनिंग पे जाएं, तो हम लेबिरिंथ को बोल सकते हैं कि समथिंग विच इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. जो बहुत ही ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है, तो उसको मैं लेबिरिंथ बोल दूंगा. आई कैन से दैट एनीथिंग विच इज लेबिरिंथ, तो वो क्या है? वो मेरे लिए टॉर्चुअस होगी. ठीक है, वो मेरे लिए इंट्रिकेट होगी. कई बार हम कहते हैं ना कि मैं इंट्रिकेसी में नहीं पढ़ना चाहता, तो इंट्रिकेसी या फिर इंट्रिकेट, यहां से केट लगा देंगे. ठीक. फिर मैं ये बोल सकता हूं परप्लेक्स होना, परप्लेक्सिटी. एंड आई कैन से वॉरेन, WARRN. आई एम श्योर आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, बट वॉरेन कैन बी द सिनोनिम टू लेबिरिंथ. सो लेबिरिंथ मीन्स भूल भुलैया या मेज, बट फिलोसफिकल मीनिंग पे जाएं तो उसका मतलब हो जाएगा समथिंग विच इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स and tortuous and intricate and perplexity and warren. So that's all from today's word. So I hope you are enjoying the session. So keep learning and keep watching English Wala. Thank you so much.